So you got 80 minutes too. All right, 2 passes. Yeah. Score off. Okay. Okay. Let's play. दिख रहा हूँ दिख रहा हूँ दिख रहा हूँ बड़ा मिठा बॉल आ रहा है, ठीक है। That's like 4 to come. Good ball, yeah. जिन्ने ज्यादा ओवर उठाने ना उन्हें अच्छी जल्दी है, ठीक है ना, समझ गए ना, और आराम से टाइम लगे। बहुत नेड़े, बहुत नेड़े। That's a boundary. And over. That's a ball item over.
नॉट आउट। बहुत ही ਵਧੀਆ ਬਾਲ ਅਲੀ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਬੀਟ ਹੋਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫਾਈਨਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਸਸ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ। बहुत ही वधिया शॉट स्टेट ड्राइव और वेल फील्ड बाय अली ते ये मैच का डिसीजन है जोगी से डिपेंड रहेगा ते जिदा भी ये स्टार्ट देंगे वो टीम ज़्यादा फेमस फेवरेट रहेगी। What a tremendous shot by goalie. It's a miss from Sam, and they are running 2 runs. Well done. It's a very confident shot by goalie. What a tremendous shot by goalie. बाउंड्री। Ali has been wet on the square by goalie. ओवर तो मैं पानी ले आता हूँ। पानी पानी One to come, yeah. रुक गया होली That's over. आप रहो फहीम भाई ओके ओके जाओ जाओ ठीक है ठीक है। So, ladies and gentlemen, we are back. Back and how? A bit late, but what a start. 20 for none. 2 overs, and that's a great start by India. Nice bowling. नहीं वो फर्स्ट लैंडिंग अंदर So है। the openers Slip हो रहा है। at the moment, the bowler is Qamar Shahzad, काउंट होता है ना। bowling right arm over, current run rate 10. Gurinder Work and Yogesh Mahajan.
Again, went for a swipe, but I wish, and everybody wishes it was Tinder. It wasn't. So swipe left or swipe right, and nothing's going to happen. You'll have to connect the ball and hit it straight. Yogesh Mahajan playing at 4. Good in the work. Good start. 8 balls, 16 runs. Bowler. F1 Qamar flipping Shahzad close. coming as a bowler. I'm checking it. 1.1 overs, 9 runs. No, no, no. I'm just saying that you're being close. Now the lights are down. Oh, it's a pink sky. Beautiful sky. I don't know if I'm able to show you because it's up in the air. There's a chance, but there's no fielder, so there's no chance. Just behind. Top edge happens all the time in T20 games. Top edge uses the pace straight over the top of the keeper to the boundary, and that's a 4. And his A first welcome landing is boundary outside, for so India. inside and then Score move to 25 Mrs. Goldie was saying for that none. probably he stepped out. 2.3 overs. first landing is outside and then he's flipping. Yogesh Mahajan at 5. Good in the work at 20. 25. Every single run has come through the bat. Qamar Shahzad bowling against, right him over. Oh, that was a good shot. Pretty cracking shot, but very well fielded at covers. हाँ, नहीं, ठीक है, call, And the call. ball sent back to the bowler. No runs taken. तू tension नहीं लेना, score आ 25 runs for the loss of none. India still needs 151 runs to win this game, to win the tournament. IMSA Multicultural Cup 2026. I'm going to thank a few viewers who are watching live and giving us the feedback. Srini, Taran, Jay, we're getting a lot of feedbacks. What a bowling. So feel free, if you're watching on YouTube, let us know. If you want us to take your name, recognize you, if you feel that is a great game going on. And thanks to our cameraman, now he's showing you the pink sky. What a beautiful sky. So 9.38. India started pretty well. And they're eyeing the 200. They're eyeing, 180, 175 or 176, whatever the target is. Qamar Shahzad, right arm over. And it's a cracking shot, but they have got a cover there. They have got a protection out there. Good arm, straight from the long off, back to the bowler, That's over. from back to bowler, back to the keeper. Good work all around. And end of over number 3. Qamar Shahzad bowling pretty well Name? at the moment. And Gurinder Virk and Yogesh Mahajan keeping the wickets intact and making sure that their chase is intact and they're going for chasing that target of 176. Doesn't change the ball, it's to come right arm over. They need another 151 from here. Balls 105. We've got a new bowler. Coming from the city end. Right arm over. And possibly a wide, and it is a wide. Welcome run. You get a run. Still have got the same number of balls. So not a bad idea of getting some runs under the total score. When you're chasing a big score, specifically under the lights, any run is welcome. Arif Shah is the new bowler. Arif Shah coming again. Right arm over. A short ball and hits such a bloody good shot. What a shot. Pitched it short. And what Gurinder Virk did. He swung his bat, he swung his body and straight like a tracer bullet. In Mr. Ravi Shastri's language, a tracer bullet, straight, square leg boundary and a 4 runs. That was a good shot. One bounce
4 straight to the stands, in the stands, and the score has moved to 29 after the 31, sorry, after that pitch of a boundary. Now they have got a protection out there. Some changes have been made and a protection. Bowling again, and the ball has been hit towards the long on. And it is a 6. That is a big 6 for a minute. The mid-on fielder thought there's a chance. He ran towards the ball, following the ball, but it was definitely out of the reach. And there goes the 6. Grindenberg, 13 balls. Batsman bowler is ready. Now it's 14, and he has got the big 6 under his belt. 37 runs. Right arm over. Birk again played straight to mid-off. No damage done. Towards the long off boundary, Halfway, 3 to come. and Yeah. score is still intact at 37 for none. So as I was saying, whoever's watching on the YouTube, feel free to mention your name. If you have got a comment, nice comment, bad comment, absolutely, would love to take your name. Good ball, Come out. missed by the batter, straight to the keeper. No damage done. Score stayed 37 for none after 3.4 overs. On the other side of the planet, India 19, 98 for 3. And we have got 3 wickets down, Vedant Trivedi playing at 25 and Bihan Malhotra playing at 20. So there are 2 India-Pakistan game on. Game is on. Good bowling, good shot towards the cover, but the fielder did pretty well, stopping what you can call a certain boundary. Under the lights is going to be a good effort if they are able to get this 175, 176 runs. They need to come out. So Arif Shah, right arm over. Played towards the mid-off. They went for a single. That was an overthrow, whether it goes to the boundary. And it is a 4 overthrow. Ho, ho, ho. Everything's happening out here. Everything is happening out here. It could have been a straightforward single, but they eyed the stumps, and there was no backup. The backup was poor. Always done. It is appalling. You have to have a backup. You're playing at an international stadium. I know we're not going to compare the international players, but you need to make your standards high. If not as high as an international player, at least you need to be good enough. Back your bowler. The bowler is doing his job. He's bowling pretty well. You need to back him up. Srini, very good friend. He has made just comments and sent us a message saying very well organized event. So thanks to IMSA. Multicultural Cup 2026, straight live from Monaco Oval. Next year, we should actually bring another team. Srini is talking about bringing a Telugu team and possibly get another. I'm sorry, Srini, possibly you'll have to get India A or India B. We are talking about a country. Muhammad Ali Raza is the new bowler. And they're going for the second. They got the couple. They got 3. They got 3. So overall, a fantastic chase on the way. What you are watching now is fantastic game happening. India has started well. It's a mountain to climb. It's definitely a mountain to climb of 176. That's the target. Target is 176 in 20 overs. It is a mountain, but they're going leaps. They are heading in the right direction. Right arm over. Straight drive, straight to long off. Under the feet of the bowler. Bowlers tried to stop it. Oh, they're going for the second run. They're going for the second run. No. It was a direct throw from long off. No damage done, unfortunately.
The batter, the Indian batsman, he was looking away. He missed the chance of the second run off throw, of an overthrow. And unfortunately for India, that's one run gone away. That was there for taking. So we have got Mali May 0 Mali Mayo 7616. He has just commented. Commentator is just changed the language, or might they change the commentator? Well, we have got two people out here. We have got Gaurav, and you have got me. So we will keep on switching the language. Considering the broader audience, we will use both Hindi and English. That's the only two languages we understand and we know, unfortunately or fortunately. So we will be shortly getting back to Hindi after this over. Coming right arm over the wicket. Ho, 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 what a shot. What a shot. Extra cover. Beautiful shot. And that's a 4 runs. That is a boundary. What a cracking shot. What a cracking of a shot. Fantastic shot. Coming on the off, you have to play it well. And just took the ball away, made some room, and got it. Perfect placement through the extra cover for a boundary. Again, right arm over the wicket. Next ball, exactly the same place. Exactly the same result, and that's another 4. What a game. Gurinder Virk, he's playing. He's a player. What a player. He's hitting boundaries at his wish. He's wishing for a 4 and going for the boundaries. That's what he's doing. The ball wasn't that bad. It was just outside of, made himself, he got some room and gave a tonk. Now there's some changes. We have got a fielder. We got the protection out there. Next ball, right arm over towards the leg, and that should be a wide, and it is a wide. One ball. 4.5 overs, 57 runs after this wide. And the last ball now coming from Muhammad Ali Raza of this over number 5. Right arm over the wicket. Went in, did a French cut towards the keeper. Keeper's running to save the second, and he was able to. So it wasn't 2, it wasn't a couple, it was just a single. The score has moved to 58 after 5. Great start by India for a chase. We still have got 1 over left in the power play. And to take you to the next, and let's get started with Hindi commentary. Here we have. तो इंडिया को जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी उसी तरह की शुरुआत दी है. ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं योगेश महाजन और गुरिंदर विर्क. पाकिस्तानी टीम थोड़ा सा समय प्रेशर में लग रही है, कंधे झुके हुए, बट उनका बॉलिंग की जो स्पीड देखने को मिल रही है, अगर आप यहाँ होते तो शायद आप समझ पाते कि क्या पेस होता है 130 पे फेस करना लाइट्स में. कुछ एक लोगों के नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने ऐड करे हैं कमेंट्स, अपने कॉम्प्लीमेंट्स दी हैं. जतिन नांगिया, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स. थैंक यू सो मच. श्रीनिवास, मोहम्मद खान 515 कहते हैं पाकिस्तान गॉट दिस. स्वप्निल कालरा कह रहे हैं इजी इंडिया विन. नमीर अब्दुल्ला कह रहे हैं हाय. मलिक फहाद कह रहे हैं ओके. फिर अब जितने लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे, वी वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए. मुझे लगा कि आखिरी ओवर के अंदर थोड़ा सा जो बैट्समैन थे वो प्रेशर में थे, उन्होंने विकेटों को टारगेट करने की कोशिश करी और बैट्समैन सीधे बल्ले से खेल रहा था, तो अब थोड़ा स्पिन ट्राई कर रहे हैं और इसे कट लगाया है, लेकिन 2 रन लेने की कोशिश हो रही है. रिस्की हो जाएगा, लेकिन थ्रो थोड़ा सा इस क्वालिटी का नहीं था जिस क्वालिटी पे आपको दिखाने की ज़रूरत है, जिस क्वालिटी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है इस तरह के तगड़े बैट्समैन के सामने.
58 रन ऑलरेडी बन चुके हैं, अब 2 रन और बना के 60 पे पहुंच चुकी है इंडिया। अगली बॉल और फिर उसे कट लगाया है, हो सकता है चौका हो जाए। अपनी बॉल और बॉल जीत चुकी है। फील्डर सेकंड आए हैं रन में, बॉल पहले पहुंची बाउंड्री रोप की तरफ और फील्डर अंडर आर्म थ्रो करते हुए, अगर थोड़ा सा फील्डर पहले से स्टार्ट ले लेते तो शायद पहुंच जाते, लेकिन शायद जजमेंट नहीं लगा पाए वो। अली मौजम एक कमाल के बॉलर हैं और उन्होंने तेज बॉल मारी है विकेटों की तरफ, लेकिन बचाव करा विकेटों का और ग्लांस करा, 1 रन आया। हमने अली मौजम को पहले भी इस पूरे टूर्नामेंट में बॉलिंग करते हुए देखा है। एज अ स्पिनर आई वुड से इज द मोस्ट फीयर्ड स्पिनर। कमाल की काबिलियत है इस बंदे में विकेट लेने की। अगर इस समय पाकिस्तान के लिए कोई विकेट ले सकता है इस समय तो शायद अली मौजम है। अगली बॉल करते हुए अली मौजम और उसे सीधे बल्ले से खेला, रिस्पेक्ट दी अली मौजम को। चार बॉलें हो चुकी हैं, 66 स्कोर। डीप कवर को पीछे थोड़ा सा करते हुए अली मौजम, हो सकता है कि शायद थोड़ा सा ऑफ की तरफ बॉल डालें, विकेट की तरफ नहीं। और उसे उठाया है, क्या ये चांस है? ओ एंड इट्स अ मैसिव 6, इट इज अ मैसिव 6। गुरिंदर विर्क ने जबरदस्त शॉट लगाया है, अच्छी कोशिश थी लेकिन बैट्समैन की कोशिश फील्डर को के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा बेहतर थी। अच्छा ट्राई था, अच्छी कोशिश और कमाल का लोगों की तरफ छक्का मारा है, फ्लैट छक्का था। शायद अगर फील्डर 8 फुट के होते तो पकड़ लेते, लेकिन बहुत ही अच्छी कोशिश थी। अनलकी रहे और जैसी इंडिया को शुरुआत की जरूरत थी इंडिया को बिल्कुल वैसी शुरुआत मिली है। रन रेट जो है वो 10 के आसपास चल रहा है और इंडियन टीम ने शुरुआत में ही पाकिस्तान टीम को प्रेशर में डाल दिया है। शायद मेरे जो साथ में पाकिस्तानी सपोर्टर्स बैठे हुए हैं वो सर हिला के मना कर रहे हैं। आखिरी बॉल के लिए जाते वाली मौजम और उसे फिर तीखी बॉल मारी है विकेटों में और 2 रन की कोशिश है, क्या रन चुरा पाएंगे? और रनिंग बिटवीन द विकेट्स का मुकाबला नहीं है इन दोनों भारतीय बैट्समैन का। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एनर्जाइजर की बैटरी लगा के आए हैं दोनों। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट रनिंग बिटवीन द विकेट्स, कोई मौका नहीं छोड़ा इन्होंने रन चुराने का। बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिकेट, जिस बॉल पे शॉट बनता है उस पे शॉट ले रहे हैं लेकिन बॉल खाली नहीं जाने दे रहे हैं। काबिलियत जबरदस्त, जज्बा जबरदस्त। इंडिया की जर्सी पहन के खेल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। मोहम्मद सोहेल 282 कह रहे हैं ग्रेट एफर्ट, इमोजी पजल कह रहे हैं इंडिया विन। प्रकाश मेहता जी कह रहे हैं वेरी गुड स्टार्ट बाय भारत। पाकिस्तान को सिर्फ 1 विकेट की जरूरत है और उम्मीद करते हैं कि शायद आवाज आप सुनेंगे सुधांशु वाचस्पति की। धन्यवाद। और बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया तो इस बार थोड़ा सा शुरुआत करते हैं हिंदी से, फिर अंग्रेजी में हम बाद में होंगे। तो बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है और 74 रन बन चुके हैं 6 ओवर में। पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल किया इंडिया ने। अंडर लाइट्स बड़ा मुश्किल हो जाता है बल्लेबाजी करना, लेकिन एक अच्छी शुरुआत है। फिर से राइट आर्म ओवर आ रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन शॉट और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया है पॉइंट पे। I'll take this opportunity also to talk about Man Down Under Cricket. इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं या यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे मैन डाउन अंडर क्रिकेट। तो आईएमसा का जो ये कप हो रहा है इसको भी हम लोग ने कवर किया है काफ़ी, और गौरव और हम ये यूट्यूब चैनल और इंस्टा चैनल चलाते हैं।
तो क्रिकेट के बारे में बात करते हैं और कोई बातें नहीं होती है। क्रिकेट के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी क्रिकेट में दिलचस्पी है तो मैन डाउन अंडर क्रिकेट को इंस्टाग्राम पे हैंडल है और यूट्यूब पे मैन डाउन अंडर क्रिकेट आप फॉलो कर सकते हैं। और ये जो हमारा मैच चल रहा है अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का, कल शुरुआत हुआ था तो हमने काफ़ी प्लेयर्स का इंटरव्यू और बेहतरीन शॉट और ये छक्का, एक और छक्का। जैसा गौरव भाई ने पहले कहा था नटराज पेंसिल, वो वाला छक्का, और ये मारा एक और छक्का। बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है इस समय। इंडिया मेरे ख्याल से अंडर प्रेशर नहीं है इस समय, पाकिस्तान अंडर प्रेशर आ चुकी है। It went across because of the wind. तो Because of the wind. हमने काफ़ी इंटरव्यू कर लिए किए थे, Yes. तो उस बारे में Yeah, अगर आपको वो इंटरव्यूज़ देखने हैं, ड्रेसिंग रूम्स का माहौल देखना है, इंटरनेशनल ड्रेसिंग रूम कैसा होता है, मीडिया रूम कैसा होता है, ये सारी चीज़ अगर आपको देखना है तो आप फॉलो कीजिएगा। हम 2-4 दिन के अंदर वो यूट्यूब पे वो इंटरव्यूज़ और डालेंगे और उसके बाइट्स थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे डालेंगे अगर छोटी छोटी रीलें होंगी। बाकी बेहतरीन क्रिकेट का मुजाहरा हो रहा है, बेहतरीन शाम है और आरिफ शाह इस समय अंडर प्रेशर हैं बहुत बेहतरी से। तो आरिफ भाई फिर से आ रहे हैं, राइट आर्म ओवर, ये शायद बड़ी अच्छी गेंद थी, बीच ऑफ ए डिलीवरी, सीधे बल्ले के नीचे, Inside edge. और हल्की सी अपील किया था बॉलर ने, शायद वो LBW चाह रहे थे लेकिन ये बल्ले के शायद निचले हिस्से पे लगी और बल्लेबाजों ने 1 रन लिया। तो इस समय निर्मल सिंह जो हैं वो नए बल्लेबाज हैं, योगेश हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं और इंडिया पाकिस्तान का बहुत ही खूबसूरत मुकाबला चल रहा है मानुका ओवल कैनबरा में। राइट आर्म ओवर खेला है, पुश किया है लॉन्ग ऑफ की तरफ, आराम से फील्ड किया That's over. और इस ओवर की समाप्ति के बाद 7 ओवर 84 रन, कोई भी विकेट नहीं। नितिन दुआ हमारे GA स्पोर्ट्स के वन ऑफ द स्पॉन्सर्स हैं, मैंने पहले भी उनके बारे में बात किया था व्हेन आई वाज थैंकिंग द स्पॉन्सर्स, और वो बहुत ही अच्छे सपोर्टर हैं। कभी भी किसी भी तरीके Just की 5 minutes आपको behind. अगर Just letting क्रिकेट you की सामान चाहिए, बैग, यूनिफॉर्म, एनीथिंग, GA स्पोर्ट्स फॉलो कीजिए। उन्होंने भी कमेंट किया है कि गौरव जी के लिए, आई एम वाचिंग विद माय न्यूबॉर्न बेबी इन माय लैप, you and Sud bhai are presenting pretty well. Please tell cameraman to track the ball right to the fence when a boundary is hit. Regards to everyone. So cameraman, know. Just send the ball. It's to come फोकस back. करो, No. फोकस। सो कैमरामैन जी को थोड़ा सा बोला जाएगा कि जब बाउंड्री पे जा रही है गेंद, उस तरफ को वो फॉलो करें और आखिरी तक दिखाएं। इस बेहतरीन शाम में कैनबरा के मानुका ओवल में जो बेहतरीन खेल हो रहा है। नए बॉलर आए हैं, मेरे ख्याल से सोहेल हैं, हाँ सोहेल ही हैं, और पहली गेंद और ये चांस हो सकता है और ये शायद कैच ड्रॉप और बगल से, और ये तीसरा रन, बेहतरीन तीसरा रन, और ये हो सकता है 4 हो जाए। ओह वाह, पाकिस्तान फील्डर्स अनफॉर्चुनेटली, सोहेल लोन बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की उन्होंने, जो एक विकेट हो सकता था लॉन्ग ऑफ पे। पहले तो वहां पे कैच ड्रॉप किया, तब तक बल्लेबाजों ने 2 रन ले लिया था और उसके बाद बॉलर और कीपर उसको बैक नहीं कर पाए उनके थ्रो को, और 2 रन और मिले, तो 4 रन गए इंडिया के खाते में। और मेरे ख्याल से अब इसको इसे दर्शाता है कि कितने अंडर प्रेशर हैं पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स। और एक वाइड, मैं इसमें सोहेल को ब्लेम नहीं करूंगा। अब सोहेल इस समय अंपायर से बात करते हुए ये शायद कह रहे हैं कि वाइड नहीं है, That's a fake. लेकिन No, no, ये वाइड दी गई है, no, no, no. It's from the edge. ये वाइड दी गई है। सोहेल और अंपायर के बीच में कुछ डिस्कशन चल रहा है। सोहेल डेफिनेटली खुश नहीं नजर आ रहे हैं अंपायर के वाइड के डिसीजन से, लेकिन खेल वापस शुरू। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के प्लेयर अब थोड़ा सा अंडर प्रेशर हैं। सोहेल लेग स्पिन करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, छोटी गेंद और उठा दिया गया है। इट कुड ये चांस हो सकता है, लेकिन मिड विकेट के शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर के ऊपर से जब तक उन्होंने दौड़ के बॉल को कलेक्ट किया, 1 रन कंप्लीट किया इंडिया के बल्लेबाजों ने। स्कोर हो चुका है इस समय 91, 7.3
2 ओवर के बाद। सोहेल लोन राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्क्वायर लेग की तरफ मारा है। स्क्वायर लेग के फील्डर ने स्लाइड करके रोकने की कोशिश की है, और ये बेहतरीन फील्डिंग, जो एक सर्टेन बाउंड्री थी वो 2 रन में तब्दील किया गया। 2 रन बचाए उन्होंने पाकिस्तान के लिए, बेहतरीन फील्डिंग की स्क्वायर लेग पे। सोहेल ने लोन अगली गेंद के साथ, ओह व्हाट अ बॉल, व्हाट अ बॉल, बेहतरीन बॉल। उन्होंने समझ लिया, देखा उन्होंने बल्लेबाज को आगे आते हुए, योगेश आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने बॉल को थोड़ी सी गति दे दी लूप की जगह और बल्ले के नीचे, और कोई रन नहीं। अगली गेंद लेके आते हुए सोहेल राइट आर्म ओवर द विकेट, और हट के मारने की कोशिश की, पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे थे। प्री मेडिटेटेड शॉट था शायद बल्लेबाज का। उन्होंने कोशिश कर रहे थे निर्मल सिंह, उन्हें मालूम था शायद छोटी पड़ेगी। बड़ी स्मार्टली सोहेल लोन ने गेंद को गति दिया और बीट हुए निर्मल। सोहेल बड़े अनुभवी गेंदबाज हैं, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पहले गेंद पे कैच छूटा था और 4 रन भी गए थे, तो फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद वाइड बॉल की प्रेशर दिख रहा है पाकिस्तानियों के ऊपर, अब प्रेशर दिख रहा है, बड़ा कंसल्टेशन हो रहा है, आपस में बातें हो रही है। ड्रिंक्स ब्रेक थोड़ी सी हुई है, एक छोटी सी। 8 ओवर के बाद 93 रन है स्कोर। निर्मल सिंह खेल रहे हैं 16 रन पे 11 गेंदों के बाद 1 चौके और छक्के के साथ। योगेश महाजन खेल रहे हैं 16 रन पे 12 गेंदों के बाद। जीनियस स्पोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया, नितिन दुआ ने बताया है, कंफर्म किया, जीनियस स्पोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया, जीए स्पोर्ट्स, जीनियस स्पोर्ट्स। सो जीनियस स्पोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया, थैंक यू वेरी मच, बड़े अच्छे आप हमारे स्पॉन्सर हैं। और कभी भी किसी भी अगर कैनबरा के या ऑस्ट्रेलिया के निवासी किसी को भी चाहिए कुछ क्रिकेटिंग गियर, सो प्लीज़ डू गो जीनियस स्पोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया, सर्च कीजिए इंस्टाग्राम पे एंड गेट सम गुड डील। डेफिनेटली मैन डाउन अंडर और आईएमसा का आप रेफरेंस देंगे तो आपको डील अच्छी है। ही लुक आफ्टर, बट ही जनरली लुक आफ्टर, इज अ फैंटास्टिक गाय। छोटी गेंद, और ये मारा है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, और फील्डर ने तेजी से पहुंचकर उस बाउंड्री को रोका, और सिर्फ 1 रन। नए बॉलर जो आए हैं वो हैं आरिफ शाह। आरिफ शाह विकल से 2 ओवर कर चुके हैं, तीसरा ओवर कर रहे हैं, राइट आर्म ओवर। सीधा खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, और 1 रन। बड़ा सेंसिबल खेल रहे हैं हिंदुस्तान वाले इस समय, बड़े सेंसिबल। अरे वाह, दूसरा रन लेने की कोशिश, ओ दोनों एक ही तरफ खड़े, और रन आउट, और ये रन आउट। मिसकम्युनिकेशन, कॉमेडी ऑफ एरर्स। दोनों बल्लेबाज एक एंड पे खड़े हुए थे, शायद आपस में बातें करने लगे थे। ये उन्होंने शुरुआत ली और फिर ये जहाँ पे 1 रन या 2 रन होता, वहाँ पे 1 रन आउट विकेट। तो पहला विकेट गिरा है भारत का, इंडिया का पहला विकेट चला गया 94 के स्कोर में। गेंद खेली गई थी लॉन्ग ऑफ पे, बड़े आराम से उसको वापस किया गया, लेकिन वो डायरेक्ट जो थ्रो था वो विकेट पे लगा। बल्लेबाज को लगा कि एक और अतिरिक्त रन चुरा सकते हैं, और वो हो भी जाता शायद, लेकिन जो स्ट्राइकर एंड पे थे उन्होंने डिसाइड किया, वो थोड़ा सा उन्होंने स्टार्ट लिया, फिर हिचकिचाए और फिर बाहर वापस अपनी क्रीज में आ गए। तब तक जो रनिंग एंड पे थे वो उनके बगल में खड़े थे। मेरे ख्याल से इंजमामुल हक और वसीम अकरम के साथ ये एक बार हुआ था। तो अगले बल्लेबाज आए हैं प्रनीत डिसिल्वा, एंड राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये मारा है कवर्स की तरफ, सिंगल रन। अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो। प्रनीत सिल्वा 95 इनिंग्स खेल चुके हैं और 3700 से ज्यादा रन है उनके। मीनवाइल चौथा विकेट गिर गया है इंडिया 19 का, 120 पे 4 विकेट। आरिफ शाह
बॉलिंग करते हुए सीधे बल्ले से खेला है, सीधे गेंदबाज के पास, जिन्होंने फॉलो थ्रू पे इस गेंद को कलेक्ट किया और वापस अपने बॉलिंग मार्क पे जाते हुए। प्रणीत काफ़ी अच्छे अनुभवी बैट्समैन हैं, जैसा मैंने बताया कि 150 से ऊपर 135-40 रन इनिंग्स खेल चुके हैं, 3000 से ऊपर रन हैं उनके। तो ये बताता है कि ऑब्वियसली बड़े अनुभवी प्लेयर हैं, बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं। देखते हैं आज वो क्या करते हैं। और ये दूसरा रन, बहुत बेहतरीन दूसरा रन चुराया। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो फील्डिंग है वो इनके बॉलर्स को निराश कर रही है, इनके बॉलर्स का साथ नहीं दे रही है। सोहेल लोन की गेंद पे कैच छूटा था, उसके अलावा 1-2 कैच और छूटे हैं। पहले भी जब ये सेमीफाइनल खेल रहे थे वहां पे उन्होंने 3-4 कैचेस छोड़े थे। आई थिंक फील्डर्स आर नॉट पैकिंग देयर बॉलर्स। वापस राइट आर्म ओवर द विकेट। आरिफ ने फॉलो थ्रू में गेंद को उठाया, शायद उनको विश्वास नहीं है अपने साथी फील्डर्स को, तो वो ही कोशिश कर रहे हैं चारों तरफ दौड़कर खुद ही गेंद को उठा लें, खुद ही कलेक्ट कर लें। मेरे ख्याल से दूसरे भी जो बॉलर्स हैं वो यही करेंगे। हमने आयमसा पे देखा था, 5-6 कैचेस छोड़े थे आयमसा टीम ने, आयमसा फ्रेंड्स ने, और जो उनके लिए भारी पड़ा अगेंस्ट इंडिया, जो लास्ट लीग मैच था, और उसी वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। इनफैक्ट सॉरी, सेमीफाइनल था वो। तो वो जहां पे 30 रन पे आउट कर सकते थे वहां उन्होंने 55-60 रन दे दिया। वापस सोहेल लोन बॉलिंग क्रीज पे अपना अगला ओवर यानी ओवर नंबर 10 लेके आते हुए 98 पे 1 भारत का स्कोर। सोहेल लोन राइट आर्म ओवर द विकेट, लूप किया, आगे बढ़े, फुल टॉस बनाया और लॉन्ग ऑफ की तरफ खेल दिया है बल्लेबाज ने, और 1 रन। सो प्रणीत ने ये बॉल खेली थी, प्रणीत ने सिंगल लिया था। 99 1 विकेट के नुकसान पे। दूसरी गेंद और ये फुल टॉस बना के मारी है, देयर इज अ चांस, लेकिन धीरे थे शायद लॉन्ग ऑन के जो प्लेयर थे, उन्होंने बॉल जज करने में थोड़ा वक्त लगाया, जब तक वो आए बॉल उनके सामने पैरों के पास गिरी, और ये एक और शायद मौका पाकिस्तान ने छोड़ दिया। सोहेल लोन राइट आर्म ओवर द विकेट, बड़ी बेहतरीन बॉल, लेट कट किया बल्लेबाज ने टुवर्ड्स थर्ड मैन, और थर्ड मैन, शॉर्ट थर्ड मैन पे फील्डर्स ने गेंद को उठाया, कलेक्ट करके वापस भेजा, और इसी के साथ 100 रन पूरे हुए, 101 हो गया, 1 विकेट के नुकसान पे भारत का स्कोर 9.3 ओवर में। सोहेल बॉलिंग करते हुए प्रणीत को राइट आर्म ओवर द विकेट, लूपी बॉल एंड इट हैज बीन थ्रोन अवे एंड आउट ऑफ द पार्क, छक्का, और ये लगा छक्का, 6 रन। बेहतरीन शॉट, बेहतरीन शॉट। सोहेल ने थोड़ा सा बॉल को खींचा, उन्होंने 2 बॉल लूपी दी थी, लेकिन इस बॉल को उन्होंने शायद खींचा थोड़ा सा अपनी तरफ से, थोड़ी सी छोटी थी। उनका ये सोचना था कि शायद वो बैकफुट पे जाके खेलेंगे, लेकिन वो बहुत ही बेहतरीन उन्होंने शॉट मारा, और मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से 6 रन। प्रणीत डिसल्वा, जैसा मैंने कहा, बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज हैं, और वो आज ये बता रहे हैं कि ये सारे अनुभव के पीछे क्या है, वहीं बल्लेबाजी। सोहेल लोन अगेन प्रणीत को फुल टॉस बॉल मिस किया राइट हैंड साइड पे, और ये आउट हो गए, ये आउट हो गए। बॉल मुझे पता नहीं कि ये एलबी दिया गया है या बोल्ड हुए हैं, क्योंकि विकेट शायद लग के कीपर के दस्ताने में गई है। That was a clean bold. That was a no, it was an LB. I'm sorry, my bad. LBW दिए गए हैं, रिप्ले में देख के मुझे कंफर्म किया मैंने। निदान सिंह अगले बल्लेबाज हैं, बड़ी बेहतरीन। लेकिन सोहेल, वो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज थी, अंडर प्रेशर आ जाते हैं ऑब्वियसली, जब फील्डर आपका साथ नहीं देते हैं तो बॉलर कितना कोशिश करे, तो ये देखने को आया है। लेकिन सोहेल और आरिफ शाह सॉरी, तो ये लोग अपनी कोशिशें जारी कर रखे हैं, बॉलिंग अच्छी हो रही है, अगर फील्डर साथ दें तो थोड़ा सा प्रेशर डाल सकते हैं। ये एक बेहतरीन बॉलिंग थी, लूपी बॉलिंग वंस अगेन, छोटी पिछली बॉल की थी, खींची थी उन्होंने, ये लूपी बॉलिंग अगेन दी है।
और छक्का मारने के चक्कर में वो आगे गए, मिस किया स्ट्रेट ऑन द पैड्स, और अंपायर ने कोई दिक्कत, कोई देर नहीं की अपनी उंगली उठाने, और ये आउट नंबर, विकेट नंबर 2। सोहेल ने छोटी दिया है ऑफ के बाहर, और आराम से उन्होंने पॉइंट के डायरेक्शन में खेला, और 1 रन का इजाफा हुआ है भारत के स्कोर में। 10 ओवर, भारत 108, 2 विकेट के नुकसान पे। इस समय बहुत ही बेहतरीन 5 minutes behind. बैटिंग और बॉलिंग हो रही है, कांटे का So 5 मुकाबला है, minutes down. 5 minutes behind. और हम आप जितने भी लोग फॉलो कर रहे हैं उनको शुक्रिया, धन्यवाद। Okay, so it's सुख वर्क ने बोला वेल डन टीम इंडिया। मली मायो 7616 उन्होंने बोला दे प्लेइंग वेल। मोहम्मद सुहेल बोल रहे हैं ग्रेट एफर्ट। नो नानू आशी पापा लव योर कमेंट्री एंड पैशन, थैंक यू सो मच। We are all volunteers, by the way. We are not getting paid. Along with IAMSA, this is also being streamed on KIW World, KIW World, a platform for communities connecting across the globe. This production is being done by them supporting the communities in IAMSA. So they do believe this professional streaming you're watching is being done only by 3 people. Thanks to them, the team, Shri, AJ, Shakti, and Vishnu. By the way, these guys are volunteers. Fantastic work being done. Great contribution. Under lights, Manuka. Well, you can download Q World app from Play Store to watch all community events across the globe, and you can connect with them to promote your content or events, and of course, your businesses. और आगे हैं इनके मिस्ट्री बॉलर, जिनके बारे में मैं कह रहा था, अली मौसम। बेहतरीन बॉलर हैं, डबल लूपी बॉलिंग करते हैं, अजीब, थोड़ा सा अलग से, अजीब तो नहीं बोलना चाहिए, अलग से थोड़ा एक्शन है। 2 बार ये हाथ घुमाते हैं और डबल जंप लेते हैं, तो काफी इंतजार कराते हैं बैट्समैन को। अगली गेंद पैरों के ऊपर हट के खेला है योगेश ने, और 1 रन लिया। बल्लेबाज है निदान सिंह। निदान सिंह ने बड़े, अभी लोकल मैच में मेरे ख्याल से गौरव ने जिक्र भी किया था, 200 रन किए थे। बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं, उनकी बल्लेबाजी आज देखने को मिलेगी। इंडियन टीम डेफिनेटली होप कर रही होगी कि वो आज कुछ आतिशी बल्लेबाजी दिखाएं। अगली गेंद ऑफ के बाहर, और 1 और सिंगल। पाकिस्तान के फील्डर्स वंस अगेन, फंबल्स बहुत हो रहे हैं, मिस फील्डिंग बहुत हो रही है। अगली गेंद अली मुअज्जम की, 1 और सिंगल चुराया ऑफ में खेलने के बाद, और 1.5 ओवर हो चुके हैं अली के, 20 रन दिया है। आखिरी गेंद है, कुछ डिफरेंस पैदा करना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, उनसे एक्सपेक्ट करते हैं उनके कप्तान। अच्छे बॉलर हैं, पीछे जाके खेला है, एलबी का बड़ा बहुत भारी अपील, लेकिन अंपायर साहब ने उसको नकार दिया। अंपायर और वॉलंटियर्स जितने हैं आईएमसा के, प्रमोटिंग सारे वॉलंटियर्स हैं, इंक्लूडिंग अस, गौरव एंड आई, हम लोग ये वॉलंटियर्स हैं, हम लोग ये कमेंट्री कर रहे हैं। सो ये वॉलंटियर है, वी एंजॉय दैट। आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग दिस सेशन, दिस टेलीकास्ट ऑन यूट्यूब। और थोड़ा सा कुछ ओवर अब बात करेंगे हिंदी में। गौरव जी को मैं हैंड ओवर करता हूँ माइक। सोहेल अगली बॉल करते हुए, सोहेल लूपी बॉल देते हैं और उन्हें पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। ये पाकिस्तानी टीम जो खेल रही है, ये बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस टीम है। अगर नितिन दुआ लिख रहे हैं कि अगर इंडिया यहाँ से मैच अगर हार जाता है तो सिर्फ सिली मिस्टेक और कॉम्प्लिसेंसी होगी, बट नितिन दुआ जी 100%, लेकिन अभी भी इंडिया मुझे कंट्रोल में लग रही है इस मैच के।
सोहेल लोन अगली बॉल करते हुए और इसे पीछे एक स्टेप लेके मारा है, दूसरे रन की कोशिश ना, इस बार रिस्क नहीं ले रहे हैं। कुछ एक पाकिस्तानी फील्डर्स जो रोप पे हैं और जब बॉल होती है उनमें से उन सबको फील्ड के अंदर होना चाहिए वरना वो नो बॉल होती, लेकिन अभी भी आराम से एक पैर बाहर है कुछ एक फील्डर्स का। सोहेल लोन अगली बॉल करते हुए लूप दिया है, ललचाया है बैट्समैन को और लॉन्ग ऑफ की तरफ एक अच्छी फील्डिंग करी है इस बॉल पे। शॉर्ट शॉट फोर था बट सीधी फील्डर के हाथों में। निधान सिंह के बारे में बहुत तारीफ सुनी हमने, लेट्स सी आज वो कैसा खेलते हैं। सोहेल लोन अगली बॉल करते हुए अगेन एक लूपी बॉल और ओ स्टंपिंग मिस हुई, स्टंपिंग मिस हुई। पाकिस्तान भले बहुत एक्सपीरियंस टीम हो, पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा हो, लेकिन पाकिस्तान की जो फील्डिंग है वो अनफॉर्चुनेटली उन्हें लेट डाउन कर रही है। बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं सोहेल लोन, ही इज एन एक्सपीरियंस्ड बॉलर, फंसा के रखा हुआ है इतने तगड़े बैट्समैन को। योगेश महाजन ने कट करा है सिंगल के लिए, सेंसिबल बैटिंग करी है इंडिया ने। रन रेट की अभी फिक्र नहीं है, अभी इस समय सिर्फ सिंगल डबल निकाल के अच्छा खेल रहे हैं। 117 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर में। निधान सिंह 5 रन पर खेल रहे हैं, 83 की स्ट्राइक रेट से। निधान सिंह का जो वैसे स्ट्राइक रेट है 143 प्लस है। मोहम्मद सोहेल 282 कह रहे हैं ग्रेट कमेंट्री, आई अप्रिशिएट योर वॉइस एंड टोन। थैंक यू सो मच मोहम्मद साहब, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। और कट लगा के चौका मारा है, बहुत ही जबरदस्त। जो इंडियन टीम में टैलेंट है जो इस समय खेल रही है, उनके लिए अगर वो रिस्क ना लें तो ये जो स्कोर है वो बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं 17 ओवर में। मिस्ट्री बॉलर फिर से बॉलिंग करते हुए बड़े आराम से सिंगल लिया है उनकी बॉल पे। हमने कल इनके जलवे देखे थे और वाकई इन्हें पढ़ पाना किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किल था। अली मौजम वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स। जैसे सुधांशु ने बताया KIW चैनल। अगली बॉल और इसे मारा है लॉन्ग ऑफ कवर की तरफ और शानदार चौका, गजब की बैट स्पीड। KIW TV चैनल ने लिखा है थैंक्स टू IAMSA फॉर गिविंग KIW वर्ल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रीम दिस लाइव एंड डूइंग द प्रोडक्शन एज वेल। ये एक मल्टीकल्चरल कप है, यहाँ सारे देश के लोग खेलते हैं एक साथ मिलके। अगली बॉल करते हुए अली और फिर से बड़े आराम से सिंगल निकाला है पॉइंट रीजन में बॉल को धकेल कर। पाकिस्तान की टीम का ये आज तीसरा मैच है और आज थोड़ा सा बारिश भी हुई है, इस वजह से शायद थोड़े से थके हुए होंगे, इस वजह से शायद फील्डिंग उनकी उतनी अच्छी नहीं है। फिर बॉल करते हुए अली आगे पिच कराई है और उसे बहुत ही बेहतरीन आगे बढ़ के फ्लिक करा है लेग की तरफ और बड़े आराम से 2 रन लिए हैं। योगेश महाजन बहुत ही अथॉरिटी से खेल रहे हैं, उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं है, वो एंजॉय कर रहे हैं अपनी बैटिंग को। 31 रन बना चुके हैं 26 बॉल पर योगेश। अगली बॉल करते हुए अली इस बॉल को आगे पिच करा और इसकी सिग्नल हो सकता है। गुड डिसीजन नॉट टू टेक अ सिंगल, फील्डर काफी अंदर था। अच्छा ओवर रहा अली का। 3 ओवर में अली ने 33 रन दिए हैं 11 की रन रेट से। नितिन दुआ कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान की टीम है ये स्लो हो सकती है फील्ड में, लेकिन उनके पास ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है और उनको मैच में कमबैक कैसे करना ये आता है। देखते हैं नितिन जी कि आपकी दुआ कबूल होती है या पाकिस्तानियों की।
और फिर से लूप दिया है और 2 रन की कोशिश है लॉन्ग ऑफ की तरफ और 2 रन बड़ी आसानी से लिए। सोहेल लोन बिल्कुल शेन वॉर्न की तरह स्पिन कराते हैं और इन्हें पढ़ना बहुत मुश्किल है। फील्डर्स इन्होंने तो डीप में ले ही रखे हैं कि बैट्समैन को ललचा रहे हैं कि वो आगे बढ़ के मारे, तो या तो कैच आउट हो या स्टंप हो, बट ही इज अ टफ कुकी टू नट टू क्रैक। और इसे फिर से बॉल मिस करिए, लकी रहे योगेश, इन्हें रेत से विकेट पर लग सकती थी, विकेट कीपर ने अच्छा कवर करा है। सोहेल लोन ने अभी तक 26 रन दिए हैं और 1 विकेट लिया है। सोहेल लोन चूंकि लूपी बॉलिंग कराते हैं, बैट्समैन को लगता है वो आगे बढ़ के उसे मार सकता है लेग की तरफ, जिसे हमारी जबान में कहते हैं लपेट सकता है, बट उनकी बॉल में टिप्पा खा के जो एकदम से बाउंस और टर्न होता है वो बड़ा डिसेप्टिव है। अगली बॉल करते हुए लोन फिर से बड़ा सेंसिबली खेला योगेश ने और लॉन्ग ऑफ पर फील्ड करा। लॉन्ग ऑफ के जो फील्डर है उनका थ्रो फिर भी काफी अच्छा है, इज प्रीटी अग्रेसिव, इज वन ऑफ दोस फील्डर्स जो एक्चुअली बॉल की तरफ चार्ज करते हैं। बाकी फील्डर्स मैंने देखा है वो वेट करते हैं बॉल अपनी तरफ आए, लेकिन ये फील्डर ऐसे हैं जो एक्चुअली चार्ज करते हैं बॉल की तरफ, इन्हें एक्चुअली सेव्ड अ सिंगल। फिर से बॉल लॉन्ग ऑफ की तरफ, निधान ने खेला अगेन अ सिंगल। बेहतरीन कैनबरा की शाम, सोहेल अगली बॉलिंग करते हुए फिर से लूप दिया है, 2 स्टेप आगे बढ़े हैं और बेहतरीन शॉट मारा है, कवर ड्राइव फुल टॉस बनाई 3 स्टेप आगे बढ़ के और शिकारी को शिकार बनाया। पाकिस्तानी टीम के हाथ अपनी कमर पर, अगर आप बॉडी लैंग्वेज के एनालिस्ट हैं तो शायद ये अच्छा संकेत नहीं है। फिर से एक लूपी बॉल, ओ क्या बॉल टिप्पा खा के कम से कम आधा मीटर कटी है ऑफ की तरफ। अच्छी कीपिंग, अच्छा एंड करा है अपने ओवर को। अझै 7 ओभर बाँकी छ अनि आधी घन्टा म आउँदा 10 बज्छ। तो 138 रन 2 विकेट के नुकसान पे बड़ी अच्छी शुरुआत और इस Batsman इनफैक्ट don't walk on the pitch and इस bowler समय is बड़ी ready. अच्छी सफर जारी है हिंदुस्तान टीम का, हिंदी वाला सफर। तो बड़ी आराम से, बड़ा सोच समझ के, उनको लग रहा है मेरे ख्याल से कि गेम उनके हाथ में है और एक तरह से उनके हाथ में है गेम, क्योंकि उनको मात्र 38 रन चाहिए 36 गेंदों में। 6 ओवर बचे हुए हैं, 38 रन चाहिए, 6.33 का जो औसत है वो है और इनके पास अभी बल्लेबाज बैठे हुए हैं। लेकिन अभी जो 2 बल्लेबाज खेल रहे हैं, यानी योगेश महाजन जो 37 रन पे खेल रहे हैं 30 गेंदों में, और निदान सिंह जो 14 रन पे खेल रहे हैं 11 गेंदों पे, 1 चौवे के साथ। तो वो बेहतरीन पारी के साथ खेल रहे हैं। टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी, मल्टीकल्चरल क्रिकेट कप 2026, हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स, उनको थैंक यू बोलेंगे, क्रिकेट एसीटी, जॉनी जियोस, सीबीटीसी, जीए ऑस्ट्रेलिया, GA Sports, CDC, Full IT Solution, Punjab Homes, Vanilla Pod and Australian International. So बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से ये मैच, ये खूबसूरत शाम आपके सामने, दर्शकों के सामने हम ला सके। थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर। ये बहुत ही बड़ी वाइड थी और कोशिश भी किया कीपर ने, लेकिन कमर शहजाद बॉलर थे, पहली गेंद बड़ी लेग के बाहर, बहुत ही बड़ी वाइड थी। किसी तरह कीपर ने हाथ लगाया और रोका, लेकिन वो 1 रन से बाय लेने से बल्लेबाजों को नहीं रोक पाए। तो 2 रन मिला, 1 वाइड का और 1 बाय का। सो 2 रन मिले बिना किसी बॉल के। सो अभी भी 14 ओवर हैं और 36 रन चाहिए। 36 गेंद, 36 रन। अगली गेंद कमर, बैकफुट पे जाके खेला है, थर्ड मैन के रीजन में, दूसरे के लिए दौड़ रहे हैं, खतरा हो सकता है, लेकिन बहुत आराम से सीधे गेंद आके बल्लेबाज को लगी, लेकिन कोई मेरे ख्याल से चोट नहीं लग रही है, आराम से कंफर्टेबल है। गेंद एक टिप पे आई थी
तो बाउंस मिल गया था, उसने अपनी रफ्तार को कम कर दिया था। तो फॉर्चुनेटली कोई इशू, कोई गंभीर चोट नहीं लगी बल्लेबाज को। उन्होंने हाथों से रोका था गेंद को। कमर शहजाद दूसरी बॉल करते हुए योगेश महाजन को। राइट आर्म ओवर दिस एंड जस्ट ऑन द बॉटम ऑफ द बैट। क्या गेंद थी, बेहतरीन बॉलिंग, बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग। कमर शहजाद एक बड़े अच्छे प्लेयर हैं। उन्होंने बल्लेबाजी में उन्होंने आज 50 रन किए थे, बड़े ताबड़तोड़ 50 रन किए थे, और गेंदबाजी में उन्होंने जो शुरुआत की थी बहुत ही अच्छी की थी। तो बड़े अनुभवी प्लेयर हैं, बड़े अनुभवी बल्लेबाज हैं, बड़े अनुभवी गेंदबाज हैं। एक अच्छे ऑलराउंडर की सारी निशानी है उनके अंदर। तो समझदारी से खेल रहे हैं, प्रेशर कितना झेल पाते हैं ये देखना होगा। राइट आर्म ओवर द विकेट, बेहतरीन शॉट, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट। पेस का इस्तेमाल किया। कमर शहजाद की इस गेंद में कोई दिक्कत नहीं, कोई खराबी नहीं थी, लेकिन पेस का इस्तेमाल किया योगेश महाजन ने। बल्ले का सिर्फ एक हल्का सा उन्होंने किनारा लगाया और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ से खूबसूरत बाउंड्री, सीधे 4 रन, और वो बहुत ही अच्छा शॉट था। गेंद अच्छी थी, गेंद कोई खराब नहीं थी, लेकिन शायद चौथे पांचवें स्टंप पे जगह बनाई और उसको ग्लाइड कर दिया आराम से। छोटी गेंद शायद वाइड हो सकती है, और ये वाइड। कमर शायद अपनी परफॉर्मेंस से थोड़ा सा नाखुश हैं। कप्तान उनके पास आ रहे हैं उनसे कुछ बात करने के लिए। घुटनों पे अपने हाथ रख के खड़े थे 2 सेकंड के लिए। शायद उनको वाइड से तकलीफ है, या अपने फॉर्म से, या वो शायद फिटनेस से जूझ रहे हैं। अभी पता चलेगा। अगली गेंद लेके आए हैं कमर। राइट हैंड ओवर द विकेट, और व्हाट अ शॉट। कुछ नहीं किया है, सिर्फ ग्लाइड किया है कवर्स की तरफ से, पैरों से रोका है गेंदबाज ने। बड़े लकी थे, फुटबॉल खेल रहे हैं, मेरे ख्याल से फुटबॉल के अच्छे प्लेयर होंगे अपने जमाने में, या अभी भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने वो बॉल की ड्रिबलिंग अच्छी कर ली, लेकिन किसी तरह से 2 रन। लेकिन बड़ा रिस्की हो सकता था। एक तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी आपके टखनों में लग जाता है, कि पैरों में लग जाता है, और हड्डी होती है उसमें लग जाता है, तो एक चोट लग सकती है, और दूसरा ये बाउंड्री भी हो सकती है, पैर रोल हो सकते हैं। तो एनीवेज, व्हाट एंड्स वेल एंड्स वेल। तो अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। खत्म से लग रहे हैं कमर शहजाद, थोड़ा सा थक से गए हैं। मैंने शब्द खत्म यूज किया है, कुछ हुआ नहीं है, लेकिन बड़े थक से गए हैं। एक तो उनकी गेंदबाजी की वजह से शायद उनके गेंदबाजी में रन गए हैं, तो वो अपने आप से नाखुश है, और शायद प्रेशर के अंडर हैं बहुत। मैंने पहले बोला बड़े बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, लेकिन सिर्फ दिक्कत ये होती है ना कभी कभी मेंटल प्रेशर। और इस समय 151 पे ऑलरेडी पहुंच चुकी है इंडियन टीम, और ये एक अच्छी गेंद, और खुद ही उसको उठा रहे, और ये शायद आउट हो सकता है, और आउट। कमर शहजाद निराश अब नहीं होंगे शायद अपने आप से। बेहतरीन बल्ले के नीचे लो फुल टॉस की, ऑलमोस्ट यॉर्कर खेला सीधे बॉलर की तरफ, और वो कोशिश कर रहे थे 1 रन के लिए दौड़े। योगेश ने स्वयं बॉल उठाई, खुद बॉल उठाई, और सीधे विकेटों का निशाना किया। जब तक मुड़ के बल्लेबाज योगेश वापस पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और अब योगेश सीधे निराशाजनक वापस पवेलियन की तरफ जाते हुए। लेकिन अच्छी पारी खेली योगेश महाजन ने, 40 रन बनाए हैं 33 गेंदों में। स्कोर अभी हो गया है 151, तो अभी भी 25 रन सिर्फ चाहिए 31 गेंदों में। हम लोग सब जब ब्रेक था, इनिंग्स ब्रेक था, थोड़ी बड़ी सारी बातें हो रही थी। अंडर लाइट्स खेलना मुश्किल होता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा साथ दिया पाकिस्तानी फील्डिंग ने। कुछ कैचेस ड्रॉप हुए, कुछ ओवर थ्रोज के रन गए, कुछ फंबल्स हुए। वो सारे रन अगर आप काउंट करें तो वो प्रेशर जो है, वो प्रेशर जो शुरुआत में बॉलर्स ने लेके आए थे, वो बड़ा लीक कर गए। और मेरे ख्याल से आज इस समय जो फ्रंट पोजीशन पे हिंदुस्तान पहुंचा हुआ है, इस मैच में भारत की टीम पहुंची हुई है, वो इस वजह से है कि शायद उसका थोड़ा सा श्रेय आपको पाकिस्तानी फील्डिंग को भी देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से फील्डिंग किया, आई थिंक द बॉलर्स बोल्ड प्रिटी वेल, लेकिन बल्ले उनके फील्डर्स थे, उन्होंने
उनका साथ नहीं दिया। दूसरी तरफ जो मैच चल रहा है बुलवायो में, इंडिया अंडर 19 147 पे 5 विकेट, वेदांत त्रिवेदी अभी भी 53 पे खेल रहे हैं, अभी अभी 1 विकेट गया। सो लेट्स गेट बैक टू क्रिकेट इन कैनबरा। तो अब अली वापस आए हैं, अभी अभी 1 विकेट गिरा है, अच्छा विकेट था। शायद अली अपनी मिस्ट्री स्पिन से, मिस्ट्री एक्शन से कुछ करने की कोशिश करेंगे। बल्लेबाज नए आए हैं कप्तान प्रिंस, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, छोटी गेंद थी, बड़ी तेज से अंदर की तरफ आई, आराम से उसको खेला प्रिंस ने, कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं। अभी भी 151, 3 विकेट के नुकसान पे 5 का रिक्वायर्ड रन रेट है, थोड़ा सा 5 से ज्यादा बढ़ गया होगा, 1 गेंद हो गई है। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, अली, छोटी गेंद, गाइड किया है पॉइंट की तरफ, और ये रिस्की रन हो सकता है। Not out. नहीं कंप्लीट किया, अंपायर ने बोला नहीं, ये नॉट आउट है, ये रन आउट नहीं है, ये नॉट आउट है। अच्छा रन था, थोड़ा रिस्की था, इस समय लेना शायद बनता नहीं था, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 विकेट जाएगा तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा और मोटिवेट हो जाएंगे और एक बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इंडिया को चाहिए इस समय सेंसिबल बैटिंग करें, और ये जीत, ये टूर्नामेंट, या आईएमसा कप 2026 प्रीटी मच उनके हाथ में है। यहाँ से कुछ गलतियां अगर करेंगे इंडियन टीम वाले, इंडियन की टीम के बैटर्स, तो यहाँ से शायद वो ये मैच हार सकते हैं, वरना ये मैच बड़े आराम से वो एक एक सिंगल और डबल करके जीत सकते हैं। और ये उठा दिया है मिड विकेट स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को, और 2 रन पीछे बैकफुट पे जाके स्विंग किया है, और जब तक फील्डर मिड विकेट से आके स्क्वायर लेग से गेंद को गैदर करके वापस फेंके, तब तक 2 रन बन चुके थे। मात्र 23 रन, या मेरे ख्याल से 22 रन बचे हैं इंडिया को जीतने के लिए 27 गेंदों में। गेंद को आराम से बैकफुट पे जाके खेला है, सीधे कवर्स के डायरेक्शन में, शॉर्ट कवर पे जो एक फील्डर खड़े हैं शहजाद, उनकी तरफ, शायद शिराज हैं, माफी चाहूंगा, शिराज के हाथ में सीधे सीधे गेंद की, वापस अली बॉलिंग करते हुए प्रिंस को, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, आराम से खेला है प्रिंस। मेरे ख्याल से सोच के आए हैं कि वो अब ये पारी को खत्म करके ही जाएंगे, बड़ी समझदारी से खेल रहे हैं, गेंद को गेंद की मेरिट पे खेल रहे हैं, वो हर गेंद पे बल्ला नहीं चला रहे हैं, बैकफुट पे जाके वो समझ रहे हैं कि अली का ये चौथा ओवर है, मात्र 1 गेंद बची है, तो इसके बाद कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अगली गेंद, और फिर सिर्फ उन्होंने यही किया, फिर से उन्होंने वही किया, आराम से फ्रंट फुट पे आकर उन्होंने उस गेंद को रोका है, और एक 154 पे 3, तो 4 मेरे ख्याल से 5 के आसपास का रन रेट चाहिए। 16 ओवर हो गए, 154, 22 रन चाहिए 24 गेंदों में, 5.5 का रन रेट चाहिए रिक्वायर्ड रन रेट। प्रिंस आराम से खेल रहे हैं, निदान सिंह 16 गेंदों पे 22 रन पे खेल रहे हैं, और अली ने 4 ओवर में 35 रन दिया है। थोड़ा सा कॉस्टली थे, लेकिन फिर भी चांसेस ले रहे थे, कोशिश वो जारी थी उनकी, लूपी दे रहे थे, थोड़ा सा अनलकी रहे 1-2 जगह। और अब ये आखिरी 5 ओवर बचे हैं, 4 ओवर, माफ कीजिएगा, 4 ओवर बचे हैं, 4 ओवर में 22 रन। इंडिया को चैंपियन बनने के लिए चाहिए 22 रन। और अगले बॉलर आए हैं मोहम्मद अली रजा। मोहम्मद अली रजा, इन्होंने पहले 2 ओवर किए थे और 26 रन दिए थे। अच्छे बॉलर हैं, लेकिन शुरुआत में विर्क ने On time. और योगेश ने उनको बड़ी सूझबूझ के साथ खेला, विकेट के पीछे खेला, उनकी स्पीड को यूज किया और रन बनाए। 13 रन पर ओवर उनका था औसत। देखते हैं नए ओवर में क्या करते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, आगे बढ़ के खेला है, लेग साइड पे, मिड विकेट शॉट में, मिड विकेट पे फील्डर ने
गेंद को कलेक्ट किया और इन्होंने बल्लेबाज ने आराम से 1 रन बनाया। निदान सिंह सूझबूझ से खेल रहे हैं। 200 रन के लिए हम बारे में बात कर चुके हैं कई बार, अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन यहाँ पे जो जरूरत है वो सूझबूझ की जरूरत है, बड़े छक्कों की जरूरत नहीं, और वही ये कर रहे हैं। और ये मारा, लेकिन प्रिंस ने नहीं सुना है। प्रिंस ने नहीं सुना भाई, निदान सिंह ने सुना है। वो बड़ी सूझबूझ से खेल रहे हैं, लेकिन प्रिंस ने सोचा कि ऊपर की जो गेंद आई है इसका वो फायदा उठाएं, और एक बेहतरीन 4 रन, बेहतरीन 4 रन उन्होंने मारा है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, और ये 4 रन और कम हो गए। इंडिया की जीत में 4 रन जो टारगेट है उसमें से और कम हुआ है। मोहम्मद रजा फिर से बॉलिंग करते हुए प्रिंस को राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये बड़ी सूझबूझ से, समझदारी से 4 रन के बाद उन्होंने बिना कोई चांस लेते हुए आराम से उसको कवर्स की तरफ खेल दिया है और सिंगल के लिए दौड़ लिए। 4.64 का रन रेट रिक्वायर्ड है, 9.73 का रन रेट इस समय है। 17 रन चाहिए मात्र 22 गेंदों में इंडिया को जीतने के लिए। द गेम इज इन द पॉकेट। मोहम्मद अली रजा, और मोहम्मद अली रजा ने अपना लाइन लेंथ, शायद वो रेडार से चूक गए हैं, रेडार उनका साथ छोड़ चुका है, और उन्होंने बहुत ही बड़ी एक वाइड लेग साइड पे किया। एक और रन का इजाफा इंडिया के स्कोर में, इंडिया का 1 रन और बढ़ गया है। बेहतरीन 16 रन चाहिए, मात्र 21 गेंदें अभी भी है। सीधे बल्ले से आराम से खेला और मिस फील्ड, फिर से मिस फील्ड। पाकिस्तान टीम ने आधा गेम इस मिस फील्डिंग की वजह से हारा है। अगर ये हारेंगे, सॉरी, आई टेक माय वर्ड बैक, मैच खत्म नहीं हुआ है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान ये मैच हारता है, जिसके बहुत चांस है इस समय, तो ये बहुत ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन उनकी फील्डर्स का होगा। बड़ा आराम से ये कवर्स में सिंगल शायद ना होता और ये 2 रन बने। अगली गेंद बॉलर के पास सीधे, बल्लेबाज ने सीधे बल्ले से खेला, गेंद सीधे लो फुल टॉस थी, बल्ले के बॉटम पे पड़ी और सीधे बॉल वापस खेला है बॉलर की तरफ। मोहम्मद अली रजा 163 पे 3, 16.5 ओवर। आखिरी गेंद लेके आते हुए मोहम्मद रजा ऑफ के बाहर, आराम से उन्होंने फेंका, नॉन स्ट्राइकर। प्रिंस चाहते थे एक रन लेना, लेकिन निदान ने मना किया, और मेरे ख्याल से बहुत रिस्की हो सकता था, तो एक सही निर्णय था ये। 17 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 163। तो हिंदुस्तान को चाहिए, इंडिया टीम को 13 रन चाहिए 18 गेंदों में। But you should have 6 bowlers, so it's only 5 done. So if you do this over, then the next over will be done by new bowlers. How come? Because there are 4 bowlers. Yes, Can you bowl see. 4, right? Yeah, but Yeah, so he's the fourth bowler. you should Dr. have Gupta minimum 6 Associates, bowlers to be 510. bowled. Yeah, so he can bowl. उन्होंने बोला वी लव यू इंडिया, थैंक यू सो मच No, Early डॉक्टर bowler गुप्ता। too. no, because you got only five bowlers. और now, so you should have Shep. 6 bowler introduced. Yeah, so I will bowl. Cyril Elliott, So, I'm but, sorry I cannot The pronounce bowler your has ID. bowls, White but ball because- game, because you umpire see, wearing whites. Pablo, like, come on, 4 dude. bowlers can bowl 4 overs. Thank you so and much. rest 2 bowlers can मतलब bowl comments के लिए I understand, but in 1 over. So that's मेरे ख्याल why से you should white have तो नहीं है 2 उनकी new शर्ट, bowlers, for the last थोड़ी over. सी क्रीमिश है, लेकिन हाँ आई कैन अंडरस्टैंड। साइड स्क्रीन हमारी The next पूरी 2 over ब्लैक will be है, new तो मेरे bowlers. ख्याल से जो गेंद आ रही है उसके पीछे से आ रही New है। bowlers, yeah. अभी तक बल्लेबाजों ने इसके अगर कोई तकलीफ उनको हो रही होती तो इस बारे में बोल दिया होता। नेवरदलेस, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। और 163 पे 3 और 17 ओवर, 3 ओवर में चाहिए 13 रन। कमर शहजाद बॉलिंग रनअप पे आ गए हैं। कमर शहजाद बॉलिंग करेंगे। 3 ओवर में उन्होंने 28 रन दिया है। देखते हैं कि कुछ कर गुजरते हैं क्या। ओहो, उन्होंने छोटी गेंद, शायद ये वाइड हो सकती है अगर
किसी बल्लेबाज के कपड़े या शरीर के किसी हिस्से से शायद लगी है, तो ये वाइड बच गई है। कीपर ने मिस कर दिया था ये बॉल, ड्रॉप किया था। रनर चाहते थे एक सिंगल लेना, जो बल्लेबाज ने, जो बैटर प्रिंस ने मना किया। आई थिंक करेक्टली मना किया। कोई रन नहीं उस गेंद पर। अभी भी 163, यानी अभी भी चाहिए 13 रन 17 गेंदों में। कमर शहजाद राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये आगे बढ़ के मारा है, लेकिन बॉल मिस की है। कीपर ने भी मिस किया है, और ये लोग 2 रन, दोनों बल्लेबाजों ने आराम से 2 रन ले लिया। ये 2 रन बाई के थे। बड़ी अच्छी गेंद थी कमर शहजाद की। कमर शहजाद ने पैर पे गेंद किया था प्रिंस के, लेकिन वो स्विंग कर रही थी और बॉल मूव कर रही थी लेग साइड पे, और अनफॉर्चुनेटली कीपर भी मिस कर गए उस बॉल को, और बाई के 2 रन चुरा लिए बल्लेबाजों ने। 11 रन मात्र। हिंदुस्तान की जीत, हिंदुस्तान की ट्रॉफी के बीच में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान, ये आइमसा कम्युनिटी कप, मल्टीकल्चरल कम्युनिटी कप 2026 के बीच में मात्र 11 रन। कमर शहजाद राइट आर्म ओवर द विकेट, छोटी गेंद शरीर पे आते हुए आराम से रोका, और एक आउट की अपील हुई। पता नहीं क्यों आउट की अपील हुई। शायद तो उन्होंने पैर से अपने बॉल को प्रिंस ने मारा, इसलिए उन्होंने एलबीडब्ल्यू की अपील की। ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड का अपील था मेरे ख्याल से। ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड थी, अंपायर ने उसको नकारा। मेरे ख्याल से ऑब्स्ट्रक्टिंग नहीं था, क्योंकि उन्होंने खेला और वो क्रीज के अंदर ही थे उस समय। उसके बाद उन्होंने गेंद को गेंदबाज की तरफ पैरों से वापस किया। कमर प्रिंस को छोटी गेंद, फ्लैट बैट, 1 रन के लिए लॉन्ग ऑफ की तरफ। टोटल स्कोर 165 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 10 रन बचे हैं, मात्र 10 रन। इंडिया की टीम और आइमसा ट्रॉफी के बीच में, मल्टीकल्चरल 2026 ट्रॉफी के बीच में मात्र 10 रन। आराम से लेग के बाहर गेंद मिस किया है, सीधे कीपर के हाथ में। प्रिंस के आने से थोड़ी सी स्टेबिलिटी हुई। उन्होंने एक अच्छा चौका मारा था, लेकिन एक चीज उन्होंने बड़ी अच्छी की है, उन्होंने कोई जल्दी नहीं दिखाई है। बड़ी सूझबूझ के साथ वो खेल रहे हैं। एक आध गेंद मिस किया उन्होंने जरूर, लेकिन वो बड़ी सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं, बैक फुट से और फ्रंट फुट से। वो जल्दी नहीं कर रहे हैं। ये आखिरी तक खड़ा रहना चाहते हैं, खड़े रहना चाहते हैं वहां पे, और वो चाहते हैं कि अपनी टीम को वो कप्तानी पारी के साथ, सूझबूझ के खेल के साथ वो अपनी टीम को जिताएं और ये ट्रॉफी पे कब्जा करें। कमर शहजाद 29 रन दे चुके हैं। अपनी आखिरी गेंद लेके आएंगे अपने स्पेल की, टू प्रिंस राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये पैरों पे शायद ये लेग बाई का इशारा करेंगे। 1 रन ले लिया है दौड़ के, और ये हाँ, लेग बाई के 1 रन चुराए हैं प्रिंस ने, और स्कोर You अब can't bowl. Ali टारगेट can't की bowl. तरफ मूव करते हुए इंडिया टीम, मात्र 9 रन चाहिए And उनको 2 4 ओवर bowlers के अंदर। 4 bowlers can 4.5 bowl का 4 एवरेज overs, चाहिए, and the one rest bowler can bowl 3 overs. तो no, टारगेट rest 2 bowlers need मात्र to 9 bowl रन। minimum of 2 overs. ट्रॉफी Didn't they और say 3 इंडिया plus के 1 बीच or 3 में plus 2 उनके or No, दरमियान it means मात्र 9 रन 6 बचे हैं। bowlers need to bowl minimum of 2 overs. We have told that one, and because he already bowled 3 overs, so no, you can't bowl 18 minimum. overs gone, 2 bowlers need to be new now. 167 for 3. India needs 9 runs in 12 overs.
जब पाकिस्तान की बैटिंग चल रही थी सुधांशु, और जब पाकिस्तान ने 176 बनाए थे, तो उस Yeah, समय the new bowler too. मुझे Like लग नहीं रहा था 6 कि bowlers इंडिया need to इतनी bowl आसानी से minimum रन of 2 चेज कर overs. लेगा। And this bowler, if मैं it's इंडियन covering this, Yeah, बैट्समैन की because you काबिलियत पर missed शक नहीं Albert कर रहा हूँ, before, so that's why now लेकिन new. 176 चेस करना फ्लड लाइट्स में, और जो पाकिस्तान की बॉलिंग रही है ज़बरदस्त, जो यहाँ तक पहुंची है। पाकिस्तान ने अपना पहला मैच इंडिया से कल Yeah, हारा yeah. था मात्र 3-4 रन से। उसके बाद अपने सारे ओपोनेंट्स को, न्यूजीलैंड हो या ऑस्ट्रेलिया, उन सबको Nimra, रौंदते you हुए go out, आगे you go बढ़ी out. है पाकिस्तान। मुझे Come लग on, रहा था guys, कि come on, let's पाकिस्तानी go. बॉलर जब आएंगे तो वो शायद तहलका मचा देंगे, लेकिन इंडियन बैट्समैन दीवार बनकर खड़े रहे। उनकी काबिलियत को सलाम है। और ये जो दोनों बैट्समैन हमारे सामने खड़े हैं, प्रिंस और निधान, इन दोनों ने इंडिविजुअली ऑस्ट्रेलिया में ग्रेड ए के अंदर 143 और 150 के इनके टॉप स्कोर्स हैं, और बहुत सेंसिबल खेल रहे हैं दोनों। निधान 22 बॉलों में 25 रन खेले हैं, और निधान का एवरेज अगर आप स्ट्राइक रेट देखें तो वो 160 प्लस है। सो बहुत ही सेंसिबल बैटिंग करी है इन लोगों ने, और बस मंजिल के बिल्कुल करीब है, बस सामने द्वार दिख रहा है मंजिल का। सो सिर्फ 9 रन चाहिए 12 गेंदों में। जैसा गौरव जी ने कहा कि मंजिल बहुत पास आ गई है, दरवाजा दिखने लगा है, और ये आगे बढ़ के उन्होंने निकालने की कोशिश की। एक शायद वो दरवाजे को तोड़ के अंदर जाना चाहते हैं। सो उन्होंने आगे बढ़ के एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। सीधे गेंद विकेट कीपर के पास गई, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। मात्र 9 रन चाहिए। अफजाल अंजुम बॉलिंग कर रहे हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट, लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है, बेहतरीन शॉट। जब तक गेंदबाज उठा के वापस गेंद को फेंकता, 2 रन। इसको मैं कह रहा हूं इतनी देर से, जब आप गौरव कह रहे थे ना कि ये उस समय आपको लग रहा था, और दिक्कत सिर्फ ये हुई है कि पाकिस्तानियों को लेट डाउन किया है उनके फील्डर्स ने। बहुत ही खराब फील्डिंग किया है पाकिस्तान टीम ने, और ये बहुत ही गंदी गेंद एक बहुत बाहर थी, ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल अफजाल ने दिया। अफजाल बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तकरीबन जहां तक मुझे याद है 14-15 साल हो गए उनको कैनबरा में क्रिकेट खेलते हुए। बड़े अनुभवी हैं, बहुत पुराने हैं। 15 साल से तो मैं जानता हूं, उसके पहले भी ये शायद खेलते थे 4-5 साल, तो ही हैज बीन देयर। तो ये सिचुएशन से कैसे वो वाकिफ हैं, ऐसी सिचुएशन से जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन से कैसे निकलते हैं, लेकिन आज अंडर प्रेशर हैं। अफजाल लेके आए, राइट आर्म ओवर द विकेट, आराम से खेला है, बैक टू द बॉलर, कोई रन नहीं। और अभी भी इंडिया को चाहिए मात्र 9 रन, 6 रन, सॉरी माय बैड, सिर्फ चाहिए 6 रन 9 गेंदों में। अच्छा, वो वाइड गई थी और 2 रन गए थे, वो मैं भूल गया। भाई साहब, लैगिंग चल रही है ये यूट्यूब पे थोड़ा सा, और टेक्नोलॉजी के चक्कर में हो गया टेक्नोलॉजिया जैसे बोलते हैं। सो मात्र 6 रन बचे हैं, अभी 8 गेंदे हैं। सो देखना है कि ये लोग कोशिश करेंगे। एक तो जो शॉट इन्होंने खेलने की कोशिश की है प्रिंस और निदान ने, लुक्स लाइक कि वो लोग आखिरी ओवर में मैच को नहीं ले जाना चाहते, लेकिन 6 रन है। आई डोंट थिंक कि उनको कोई ऐसी जल्दबाजी करनी चाहिए, लेकिन हाँ 2-3 रन तो निकालना चाहिए इस ओवर में। और आगे बढ़ के निकाला है, और ये गेंद गई है लॉन्ग ऑफ की तरफ। वो लोग दौड़ रहे हैं दोनों बल्लेबाज, विकेट की तरफ, कीपर की तरफ गेंद, और 2 रन लेने में कामयाब। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छी बल्लेबाजी। ह्यूमिडिटी थोड़ी सी है बाहर, लेकिन फिटनेस का जवाब मतलब आपको देना पड़ेगा कि दिस इज ब्यूटीफुल कि फिटनेस इतनी अच्छी है। तो ये लोग दोनों बल्लेबाज बेहतरीन, जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स, इवन पिछले गेम में मैंने ये जिक्र किया था, सेमीफाइनल में लो स्कोरिंग था, बाउंड्रीज नहीं आ रही थी, बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे आयमसा वाले, लेकिन उन्होंने एक बात बेहतरीन काम किया, जो 60 रन बनाए थे, 55-60 रन, वो दौड़ के बनाए थे। फुल टॉस गेंद ऑफ में खेला है टुवर्ड्स द कवर, और 1 रन आसानी से बना लिए इंडियन प्लेयर्स ने। तो स्कोर पहुंच गया है 173, 3 विकेट के नुकसान पे।
मात्र 3 रन चाहिए ओवर की समाप्ति अफजाल की। उन्होंने इस ओवर में 6 रन दिए। वैसे तो इकोनॉमिकल ओवर होता, लेकिन लुकिंग एट द सिचुएशन इस समय ज़्यादा रिस्क लेने के चांस कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो अब आखिरी ओवर है, Come on, guys, you got बीच 2 में over, 2 मशवरा हो minutes. रहा है, अंपायर से भी कुछ बातें हो रही है और 3-4 पाकिस्तानी प्लेयर शायद आपस में ये बातें कर रहे हैं कि किसको बॉलिंग कराना चाहिए आखिरी ओवर, मात्र 3 रन चाहिए। 3 रन में भी फँस सकता है गेम, ऐसा नहीं है कि 3 रन में ऐसा हुआ नहीं है। ना क्लब क्रिकेट में भी हुआ है, इंटरनेशनल भी क्रिकेट में भी हुआ है कि 2-3 रन पे भी मैच फँसे हैं। तो ये देखना होगा कि बॉलर कौन आता है और कौन ये ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेता है आखिरी ओवर करने की। निदान सिंह 30 रन 28 गेंद, प्रिंस 8 रन 10 गेंद। मोहम्मद सैफ जो जाने जाते हैं अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी को लेकर, आज उन्होंने भी फिर 50 एक मारा था। सुबह भी 50 मारा था। अब वो अपनी गेंद को लेके देखते हैं क्या करते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट और बेहतरीन शॉट कवर्स की तरफ खेला है और एक बार फिर से मिसफील्ड और पैरों के नीचे से पाकिस्तान के प्लेयर्स का ये गेंद निकल गई है और 4 रन और जीत गई है इंडिया। इंडिया हैज बिकम the champions of IMSA Multicultural Cup 2026. What a shot! निदान सिंह अपनी जो उनकी रेपुटेशन है उस रेपुटेशन को रखते हुए उन्होंने बेहतरीन शॉट मारा है। अनफॉर्चुनेटली आई हेट टू से कि पाकिस्तान ने अपनी रेपुटेशन को भी जारी रखा जो उन्होंने पूरे मैच में किया है, जो उन्होंने पूरे मैच में एक बहुत ही खराब गेंदबाजी किया है। उस गेंदबाजी बहुत खराब फील्डिंग किया है। गेंदबाजी उनकी अच्छी थी, फील्डिंग जो आखिरी पे बोला जाता है ना कि एक कहा जाता है कि जो जिस तरह से पूरा गेम हो वैसे ही उसका अंत हो। जैसे बल्लेबाजों ने खेला वैसे ही, तो इस खेल का जो अंत हुआ है वो एकदम राइट वे में हुआ है। राइट वे में मतलब कि वो पूरे मैच में जो इन्होंने फील्डिंग खराब फील्डिंग का मुजाहरा किया है जो पाकिस्तान टीम ने, और आखिरी में भी यही हुआ। सीधे हाथ में थी फील्डर के, कवर्स में शॉट खेला आखिरी और पैरों के नीचे से वो एक बाउंड्री चली गई। तो ये एक बड़ी जीत है टीम इंडिया के लिए, सेलिब्रेट करते हुए। एंड क्यों नहीं सेलिब्रेट करेंगे, इतनी बेहतरीन टीम थ्रू आउट अनबीटन आए हैं वो। उन्होंने तीनों लीग मैचेस जीता। थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी उनको आइमसा के खिलाफ, ज़्यादा रन नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने बॉलिंग और फील्डिंग में जो दिखाया है कि वो कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दिलबाग सिंह, स्क्रीन पे आपकी पूरी टीम अब आते हुए। गौरवदीप सिंह फैंटास्टिक बैटिंग, फैंटास्टिक बॉलिंग। प्रिंस ने बड़ी अच्छी पारी खेली, उन्होंने पारी जिम्मेदारी की खेली है। निदान सिंह 34 रन बनाए उन्होंने 29 गेंद पे, और मेरे ख्याल से 4 रन और ऐड होंगे क्योंकि वो 4 रन अभी इसमें ऐड नहीं हुए हैं। 38 रन बनाए उन्होंने 30 रन से, क्योंकि अभी भी आ रहा है यूट्यूब पे कि 1 रन चाहिए 5 गेंदों में, लेकिन जीत चुकी है इंडिया। Men in blue have won the game against men in green. तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है इंटरनेशनल अंडर 19 में जो वर्ल्ड कप में है, क्विकली एक स्कोर चेक करके हम अपडेट कर देते हैं। तो इंडिया इस समय 171 पे 5 विकेट है, 37.4 ओवर्स, 50 ओवर का गेम है। वेदांत त्रिवेदी बहुत ही बेहतरीन पारी खेल रहे हैं, वो काफ़ी देर से लगे हुए हैं। 63 रन बनाया है उन्होंने 91 गेंदों पे, अब तक नॉट आउट है। RS अम्बरीश 14 रन बना के खेल रहे हैं 18 गेंदों के बाद। हैंडशेक्स हो रहा है बैक इन कैनबरा में वापस आते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान के जो सारे खिलाड़ी हैं एक दूसरे से हैंडशेक हो रहा है। यहाँ पे हैंडशेक हो रहा है।
और सब आपस में मिल के खेल रहे हैं। कम्युनिटी कप है, स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे ऑर्गेनाइजर्स, प्लेयर्स एंड जो एटमॉस्फेयर है बड़ा अच्छा है। और ये दो जो नॉट आउट निदान और प्रिंस नॉट आउट बैट्समैन हैं, वो अपनी टीम की तरफ इशारा करते हुए बल्लेबाज एंड माइक ड्रॉप की तरह उन्होंने बैट ड्रॉप किया है। सो फैंटास्टिक बैटिंग बॉयज, फैंटास्टिक ओवरऑल गेम। बड़े आराम से 177 रन बनाए। हम सब सोच रहे थे कि ये एक मुश्किल गेम होगा, लाइट्स के अंडर लाइट्स इट्स गोना बी a mountain to climb, as they say, you know, a mountain to climb for the Team India. But eventually, what happens? End of the day, there are three things in cricket when it comes to a team sports. It's a team sport. It's not an individual sports. Couple of batsmen, they played fantastic, amazing batting by a couple of Pakistani batters. So what they did, they batted pretty well. They got a good score, 170 odd runs. 175 रन जो उन्होंने बनाए, बेहतरीन बनाए. But what are required, as I said, as I was about to say, that you need batting, you need bowling, and you need fielding. जो पाकिस्तान की टीम है, उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की, उन्हें बेहतरीन गेंदबाजी की. जो वो बेहतरीन ना कर पाए, इनफैक्ट एवरेज भी नहीं किया, बहुत बुरा किया है, वो है फील्डिंग. बहुत सारे कैचेस छोड़े और अनफॉर्चुनेटली बड़े सारे रन छोड़े. ओवर थ्रोज में उन्होंने 6-7 रन दिए हैं, 4 रन दिए हैं, बाउंड्रीज दिए हैं, पीछे से रन चले गए, कीपर्स ने छोड़े हैं. और हर तरह से मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स, आई कांट सी फ्रॉम हियर हु ऑल हैव डन दैट. बट गुरिंदर वर्क 57 रन बनाया उन्होंने 26 गेंदों में, शायद वो मैन ऑफ द मैच हैं. 8 चौके 2 छक्के, 219.23 का उनका स्ट्राइक रेट था. तो बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया है. सो यूट्यूब पे अब बाकी हम प्रेजेंटेशन आप देखेंगे, माइक से प्रेजेंट किया जाएगा मेरे ख्याल से. तो हम आपको अलविदा कहते हैं यहाँ से कमेंट्री बॉक्स से. और अगर आपको कोई भी फीडबैक देखना है, अच्छा लगा है और जैसा भी है, सो प्लीज़ डू गिव अस फीडबैक. आप चैट पे हैं, इतने सारे लोग देख रहे हैं लाइव, तो वो डेफिनेटली प्लीज़ फील फ्री कि आप हमें वो फीडबैक दें. यहाँ पे TREPXER Relert 8710 आईडी वाले ने, सज्जन ने कमेंट किया है, बकवास फील्डिंग बाय पाकिस्तान, गुड एट स्विंगिंग बैट, नो गुड एट एनीथिंग एल्स, ऑन पार विद इंडिया, बेटर टीम वन. एब्सोल्युटली, मैं आपसे एकदम सहमत हूँ. मैंने बोला थोड़ी देर पहले, अभी भी बोला कि बेहतरीन बल्लेबाजी किया उन्होंने. बहुत अच्छी बैटिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से. कमर ने, सैफ ने बड़ी अच्छी पारी खेली. बॉलिंग भी अच्छी थी, सुहेल ने अच्छी शुरुआत दी थी. लेकिन जब आप कैच ड्रॉप करेंगे, जब आप फील्ड में इतने सारे रन छोड़ेंगे, तो आई बिलीव कि वो एक दिक्कत है बहुत बड़ी. Sanjay and we'll wait 3 seconds. That's okay. प्रकाश मेहता जी ने बोला है कांग्रेचुलेशंस टीम इंडिया. दीपक मुरली बोलते हैं वेल प्लेड बोथ द टीम, कांग्रेचुलेशंस टीम इंडिया. डॉक्टर गुप्ता, मैंने पहले ही कमेंट पढ़ दिया है, गो इंडिया. सुख विर्क, सुख ने कमेंट किया है, भटिंडा PBO3, गुरिंदर विर्क नंबर 1 प्लेयर. Absolutely, he played like a number 1 player. Fantastic batting, what a 50. 53 रन उन्होंने किए हैं, बेहतरीन 200 के ऊपर की स्ट्राइक रेट था. So I'd like to start by congratulating Team India. Congratulations. We'll have a presentation a bit later on, but also Team Pakistan. What a fantastic final. Down to the last over, some fantastic batting, 170 plus. To make it in the first place is no mean feat, and to chase it is pretty fantastic too. So moving on to, I'd also like to, sorry, sit you up there, to acknowledge some guests we have with us today. So I'd like to acknowledge Fiji High Commissioner Ajay Bayamrit. I'd like to acknowledge David Smith, Susan Orr. Thank you for being here with us. And I have Akhilesh, Varun, and before I get a name wrong, Vivek. Thank you very much for joining us.
I'd also like to thank a series of sponsors who've made this possible. So very much like to thank, start with Akash, Varun, Vivek. yeah. Thank you all very much. I'd like to thank Greg Bora and Canberra Data Centres, CDC, Nidan, VanillaPod, GA Sports, who aren't here, but we have something from that a bit later. Cricket ACT, Chelsea is here from Cricket ACT, Johnny Geos, Punjab Homes, Praneet, where are you, Praneet? You're probably taking photos. Thank you very much. Thank MeTV, Shree and his team who are still videoing this finish. And not to forget, also to the Manuka staff, Megan, Liam and Jeff, I'm sure at least one of you is here somewhere. And thank you to the curators as well, who I'm hoping are long in bed. And also Dipta, Pablo, thank you so much. Before we go any further, we have a few small gifts that I'd like to invite Sanjay to present. So would you like to start with, yeah, AJ Bhai, would you like to, small gift of appreciation for you from IAMSA. Suzanne, I'd like to invite you next. David, if you would please. Akalesh, if you'd like to come forward on behalf of... Sanjay, would you like Varun, Vivek, or to umpires? To umpires. As I've said, thank you to both of our umpires, but if you'd both like to come forward, they have a small gift of appreciation for your fine efforts. Wait. It's very, very rare. Yeah, we'll it's very, very rare that all the teams have positive things to say about the umpires, and it's a very hard job, and it's fantastic to hear the support there tonight, so thank you very, very much. Yes, Varun and Vivek, I'd also like to invite you up. And after this last presentation, I will hand to AJ to briefly say a few words, if you'd like to. One more, sorry. Varun, please. Thank you very much. I'd at this point like to call upon our Fiji coach and fitness coach, or I'm not sure what we call it, coach, manager, I think he's everything, but he has a very special gift to give to the president, Mr. Sanjay Sharma, and I'll let him explain what it is. Vinaka, thank you. Thank you very much. Congratulations, Team India. Thank you very much, Pakistan, for the very competitive spirit for the past 2 days. And thank you, stakeholders, supporters, for your wonderful 2 days. This has been an eye-opener for us. Fiji is a small country, still developing in cricket, and the opportunity that IAMSA has given us has been eye-opening. And we hope that in the future we'll continue this partnership, cooperation through cricket. Thank you very much.
we have a small token of appreciation from Cricket Fiji via the Fiji High Commission. You do know that in Fiji's history, we used to be cannibals. That's what they say. So, this is just a small replica of what a war club used to look like. So this was our weapons back in the day. I'm not saying, Mr. Sanjay, for you to use it, but please, and I invite the High Commissioner, if you could present this small token of appreciation to the President of IAMSA. Please, let's a big round of applause. You jump in. Thank you. Thank you, Tomasi. Ajay Bhai, would you like to say anything more? Or? No, I'm fine now. Fantastic. Thank you. I would like to say massive thank you to Tomasi and the Fiji boys for being here. Seeing Joeli bowl very, very fast was very, very exciting. I'm sure it made a few batsmen nervous, but fantastic to have you all here. Might pass to David to say a few words. Thanks, and look, it's great to be on the land of the Ngunnawal Ngambri people here who have a connection going back thousands of years. But it's great to have people playing cricket on this ground more often. So, you know, a ground where so many internationals have graced the field. It's just fabulous to see local cricket taking advantage of it, but particularly local cricket taking advantage of it when it's representing the magnificent multicultural community that we have here in Canberra. And Team India, Team Pakistan. Well, Team Pakistan, you keep beating Australia at the moment, so you can't expect to win everything. But you went very close. What a great game, and what a fixture this is now starting to become on the ACT calendar, not just for sport, but also for our broader multicultural community. And I think we're still aiming to see if we can make it part of the multicultural festival, because pretty much you're the first event that kicks it off. So well done, and well done on such a great display of good sporting behaviour and exciting cricket. Thank you. Oh, yeah. Thank you. Hello, thank you. I'd just like to take a moment to acknowledge that we're meeting on the lands of the Ngunnawal people to pay my respects to elders past, present and emerging, and all our people and family with a connection to the lands of this country. I'm very impressed by the kids who are still going strong here tonight. I think it's quite late, but they're very enthusiastic and I can see them running around the whole time. So I feel a little bit for the parents who are going to have to try and put them to bed when they're still excited. But great effort to all the teams today. I think in all the years that I've seen Sanjay running these tournaments, is me saying, I want to get onto Manuka Oval one day, I want to get onto Manuka Oval one day. And to be at the third year of being on Manuka Oval, I think is a really big accomplishment and a testament to his never give up attitude. But it wouldn't happen without the team. So thanks for everything you contribute. I hear it was quite a challenge yesterday with the heat, and today it feels like you're in the middle of winter because it's cooled down from 40 degrees. But thank you all for persevering, for playing through that, for everything that you do for our city and our culture, and bringing the diversity to it that's just so important. And I look forward to many more of these matches. Thank you. Sudash, I believe. Sudanshu, sorry. Please, we'd like to give you a gift and thank you for your time and your efforts to commentate on the matches. It really makes a great addition to the live stream, so thank you. We have one last gift to give. I'd like Akalesh, Vivek Varun to please come up and join us. I'd also like Tomasi, if you could please come up to receive a small gift from GA Sports that you can take home and hopefully is of some help with training and everything else.
as they come up with the next gift. I'm not sure if anyone saw Matt's hit in the biggest six competition. He put it almost the furthest. I think he was second. He put one back to the top of the stands there. So I don't think he needs a new bat, but maybe the other boys. If you'd like to present the kit bag. We've made this hard for you, Tomasi. Sorry, mate. I'd now like to invite David and Suzanne to present the runners-up trophies. And if I could have Captain of Pakistan come forward, and as your team receive their trophies, say a few words. Thank you. Please come forward and... I should call the name out, say a few words. Yeah, right, okay. Look, thanks, Sanjay. Thank you very much for that. And thanks for our real captain, Ahsan Jaleel. Unfortunately, he got injured, and I just stepped in. And I think it was beautiful couple of 2 days. We found few friends in even our own community. So we really enjoyed it. I think morning was Pakistan, belonged to Pakistan. We won 3 matches straight away. But India classed us out. You know, we just couldn't sustain. We didn't have answer to their batting. So well done, Goldie, and all that for a very fiery start. But it was a good match at the end, and thanks to the organizers and everyone and stakeholders, as you said. So thank you very much, and we look forward to participating again in this competition. So I'm gonna call my player's name. Let's start with Fahim. Shiraz. Kamar. Ali. Story alone. Saf. Daniel. Come on, guys, you can cheer. You're up, right? Arif. Ali Raza after this. Could well be. Like, there's so many. Ilyas. Ahsan Jaleel bhai, please. Yeah, you receive as well. Yeah, you deserve it, Ahsan bhai. Am I missing anyone? Yeah, okay. We all done, is it? We all done? Yeah, and yeah, fine with me. That's fine. Sorry. Usually that's a hard job. Come on, guys. Congratulations to Team Pakistan once again on a fantastic performance. Could I please call up Prince? Where are you, mate? Yeah, there. Invite you to say a few words and then call your team up to receive their trophies. First of all, well done, boys. You guys deserve this win and been waiting from last 2 years. And thank you, Pakistan team, being very friendly in the field. And thanks, Sanjay Sharma, for giving us this opportunity. Not many people get this opportunity, and we are very thankful to IMSA and our sponsors tonight. It's been a great game of cricket in the field. Boys done very well, and Pakistan played really well. I would like to highlight Kamar Shahzad from Pakistan team. He did a whack to Indian team. We were surely in the awe when we have seen the sixes to our fastest bowler of Canberra. But it was a very good game, and well played, boys. And thank you, Sanjay. Thank you so much. Call the boys up. All right, Yogi.
Oh, sorry. I forgot the important part of inviting you up, Ajay bhai. I need to say something. This is the third time we are taking a winning trophy from Fiji ambassador. So this is the I think very important part of this night. And thank you so much. Thank you so much for being there for us. Thank you. Okay. Yogi. Okay, we'll go that way. Oh, yeah, sure. Yeah. All your players and then Yeah. we'll do you with the trophy. Yeah. Goalie. Punit Nidan. Nirmal. Gaurav. Dilbag. Gaurav. Arsh. Praneeth. Sorry guys, I just want to highlight Praneeth. He is from Sri Lanka and he has been a very good support to Indian team because Sri Lanka wasn't playing this year for some reasons. So he was always up to support us. Thank you Praneeth. And he is a very good player of Canberra. Gurpreet. Sukh Sandhu. Rajdeep. And myself. So I'd like to invite our guests to the trophy to, in a moment, join the winning captain for the very important ceremonial raising. That's okay. The last one. Please jump in. Please. Oh, We'll let him raise it. Congratulations, Team India. It's behind. Prince, wait, hold. You can't be the champion. Yep. Please jump in, guys. Quick, guys, quick. You need to be there out 5, 10, 15. Come on, guys, quick. Just before we all head off, I believe Sanjay would like to say something about his good friend Jatin, who has been a great supporter of today. Sanjay. Yeah, thanks, Jatin. Guys, can I have your attention, everyone, please? The man behind my hard work. Guys, Indian team, I would like to say thanks to Jatin. Thank you, brother. Your help means a lot to me. Give him a big applause, guys, to Jatin, please. Thank you. Thanks, everyone. You have only 10 minutes to pack everything. We need to get out from here. Thank you. Thank you. Much appreciated. Really Unlucky, well done. but very